बट व्हाट वी विल स्टडी इन अर्थ, आपने कहा स्टडी ऑफ अर्थ, बट व्हाट डू वी स्टडी इन अर्थ, अबाउट अर्थ क्या पढ़ते हैं स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में हम? ओके, और एनीथिंग एल्स? क्लाइमेट, हाँ, एनवायरमेंट, बट हाँ ठीक है चलो, और सी ज्योग्राफी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, जियो प्लस ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस। तो याद रखेंगे ज्योग्राफी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जियो प्लस ग्राफोस। What is the meaning of this? Geo means earth, earth. And what is the meaning of graphos? Description. So when we describe the earth, when we describe the earth, description of earth means description of earth is nothing but geography. Who is called as father of geography? Yes, please come. Who is known as father of geography? Eratosthenes. Eratosthenes is called as father of geography. Reason? Because he for the first time has tried to map the earth. सबसे पहली बार मैप करने की कोशिश किसने की थी? इराटोस्थनीज ने, इराटोस्थनीज ने। और ही वाज अ ग्रीक फिलोसफर एज वेल। क्लियर? अब ज्योग्राफी हैज मेनी ब्रांचेस, हम ये एक डिफिनेशन भी लिख सकते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी इज व्हाट? इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स फीचर्स, फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, plains, and all these things will come under the definition of earth, description of the earth। description of the earth में हमें physical features भी पढ़ना है, mountain, plateaus, plains, coastal areas, वो सारी चीजें। not only this, ये तो exterior of the earth है, interior of the earth को भी हमें पढ़ना है। for example, what is the interior of the earth? what is there in the crust, mantle and core, which is the interior of the earth? यही नहीं, अर्थ के अंदर वोल्केनोस अर्थ के अंदर से ही जनरेट हो रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, अर्थक्वेक अर्थ के अंदर से ही आ रहा है। वी हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंट फिजिकल फेनोमेना सच एज वोल्केनो, सच एज अर्थक्वेक, व्हाट आर दीज अर्थक्वेक्स एंड व्हाट आर दीज वोल्केनोस, कहां से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, दैट वी हैव टू डिस्कस। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। Geography is a branch of social science that deals with the study of earth and its features. And what we will discuss in its features? In its features, we have to discuss about physical features such as various landforms, such as atmosphere of the earth. There are 5 layers of the atmosphere, you might know: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. We have to discuss what is the special characteristics about each of these spheres, वो भी हमें पढ़ना है। Then we have to discuss something related to its interior of the earth as well. Interior of the earth has, for example, how many layers are there in the interior of the earth? There are 3 main parts of there: crust, mantle, and core. What is contained there? What is special about them? ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। And what are the regions for the origination of earthquake and volcanoes? What are plate tectonic movements and different things? These are the things to be discussed in our geography subject. Geography has many branches such as physical geography, human geography, economic geography. Physical geography means when we will discuss the physical features of the earth. And when I say physical features of the earth, climate, atmosphere, relief features such as mountain, plateaus, plains, all these things. ये आएगा physical geography। Human geography में how human behavior is impacted through geography। Geography, क्या आपको लगता है geography human behavior को impact करती है? Do you think human behavior is impacted through geography? How? Can you give me one example how geography influences the human behavior? Please tell me. Yes, because water is very necessary. किसी भी civilization को establish होने के लिए water is very important. आपको पता होगा भाई गंगा के किनारे पूरी establishment क्यों हुई, या इंडस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप क्यों हुई? Reason is water. Yes, that can be a good example. Also, see, human behavior is also impacted with the climate. For example, the people who are living in West Asia, in Saudi Arabia, UAE, they would like to wear the loose clothes. But a person who is located in the Siberian region, Arctic region, in the, let's say, Russian region, Europe region, they would like to wear the tight clothes. Region, climate. The climate in Europe and Siberian region is cold as compared to West Asian region. क्या हो रहा है? Geography is monitoring the human behavior. Geography is influencing the human behavior. तो geography human behavior को influence कर रहा होता है। अगर हम ये पढ़ने लग जाएंगे तो ह्यूमन, ये क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी है।
हाउ ज्योग्राफी इज इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर में क्या क्या आ जाएगा, हाउ द पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, that will also come. Which are the factors which push the human from migrating from one place to other place? People search for better livelihood opportunities, better environment to sustain, तो वो सब ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा। एंड when we will discuss about economic geography, उसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, how the mineral resources are important for maintenance of economic geography. So ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में कई ब्रांचेस हो सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल, और वी कैन सिंपली डिवाइड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा और इंटीरियर में बता दिया डिस्क्रिप्शन, लेकिन आप याद रखेंगे हम वी कैन ऑल्सो डिवाइड ज्योग्राफी इनटू फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमें इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल फीचर्स सच एज बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, yes, coastal states, how many coastal states are there in India? Please count and tell me how many coastal states, question समझ में आ रहा है आपको, how many coastal states are there? For example, if this is the coastline of India, then how many states are going to fall under this? Please count and tell me. Yes, बताइए, how many coastal states are there? काउंट करो, 8 और 9, 8 और 9, योर ऑप्शंस आर 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोस्टल मतलब जो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री जो शेयर करते हैं, काउंट करो। एंड इफ वी टेक यूनियन टेरिटरीज आल्सो इनटू अकाउंट, देन अगर हम यूनियन टेरिटरीज को भी अकाउंट में ले लें तो बताओ, स्टेट्स बताओ कितने हैं जो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, और यूनियन टेरिटरीज अगर दोनों को ले लें तो कितना हो जाएगा, 10? नहीं, देयर आर 9 स्टेट्स। स्टार्ट करो कहां से, गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, ठीक। देन वी हैव तमिलनाडु के बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और एक स्टेट और छूट रहा है कोई तो, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विल ऑल्सो शेयर, आंध्र प्रदेश नहीं बोला ना हमने, कर्नाटक के बाद, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो कौन से 9 स्टेट्स हो गए, फिर से सुनो, वी हैव दी गुजरात, देन वी हैव महाराष्ट्र, देन वी हैव गोवा, देन वी हैव केरल, देन वी हैव तमिलनाडु, देन वी हैव आंध्र प्रदेश, देन वी हैव उड़ीसा, देन वी हैव वेस्ट बंगाल। कितने स्टेट्स हुए, 9। यस, अब 4 अगर यूनियन टेरिटरीज को देख लें, 4 यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, बताओ। अंडमान एंड निकोबार, हाँ वेरी गुड, अंडमान एंड निकोबार एज वेल, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, अब तो एक ही हो गया है ना, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, एंड लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी या पुडुचेरी। सो टोटल अगर हम बात करेंगे, टोटल 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, ये फिजिकल फीचर्स में आ जाएगा। फिजिकल फीचर्स यही नहीं, हाउ द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हैज बीन डन। फॉर एग्जांपल, यू विल नो देयर इज समथिंग नोन एज हिमालयास, देयर इज समथिंग नोन एज नॉर्दर्न प्लेन्स, देयर इज समथिंग नोन एज डेक्कन प्लेटू और पेनिनसुलर प्लेटू जिसको हम बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे पास, देन वी हैव द आइलैंड। दीज आर सम ऑफ द फिजिकल डिविजन्स ऑफ द इंडिया। ये सब किस में आएगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी डिपेंड करेगा, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रॉड डिवीजन यही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा सिलेबस देख लें हम लोग यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेंशन है, देन वी विल जंप इनटू आवर फर्स्ट चैप्टर, वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे चीजें एडवांस होती जाएंगी। स्टार्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सिलेबस ऑफ geography from UPSC point of view. Once we write the syllabus, we will be clear with something, then we can proceed. उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं। Okay, so now note down the syllabus of geography. But before that मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, that will be your assignment to do from your homework home। इसको लिख लेंगे,
पहला असाइनमेंट आपका क्या रहेगा? योर फर्स्ट असाइनमेंट विल बी टू नोट डाउन all the coastal states and union territories of India along with length of border या लेंथ ऑफ बॉर्डर या बॉर्डरिंग। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? मतलब आपको 13 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बताया उसके स्टेट्स के नाम और कितना लेंथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है? लेंथ ऑफ द बॉर्डर अलोंग द कोस्ट लाइन, दिस विल बी योर टास्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अबाउट ज्योग्राफी, फिर मैं आपको सिलेबस लिखवाता हूं। पहले मैंने जो आपको ज्योग्राफी का पॉइंट बताया वो आप नोट डाउन कर लो, प्लीज नोट डाउन। सबसे पहले नोट करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस सब्जेक्ट ज्योग्राफी। सो सबसे पहले लिखेंगे द वर्ड ज्योग्राफी कम्स फ्रॉम, डिक्टेट भी कर सकता हूं थोड़े थोड़े पॉइंट ना, आपको लिखोगे ना, राइट? द वर्ड ज्योग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, द वर्ड ज्योग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया। जियोग्राफिया मैं यहां लिख देता हूं, देख लो, जियोग्राफिया। द वर्ड ज्योग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया। Geographia, which is a combination of two Greek word, which is a combination of two Greek words. One is your geo and the other is your graphy या graphos, कुछ भी कह सकते हैं, graphy or graphos, graphy or graphos. What is the meaning of geo? Earth. What is the meaning of geo? यहाँ लिख लेंगे, which means earth. And what is the meaning of graphy? It is the meaning to write or describe, description or to write, description or to write something, description or to write something. So when we describe the earth, it is called as geography. Then you have to note, geography is the earth, a study of earth feature. Geography is the, लिख लो, geography is the study of, geography is the study of earth's land features, earth's land features, inhabitants and phenomena. Inhabitants, we are the inhabitants of earth, inhabitants and phenomena, and phenomena. It also includes the study of universe as a whole. It also includes a study of universe as a whole. Universe क्या है बताओ मुझे? What is universe? Can you tell me what is universe? What can be the definition of universe? And Eratosthenes, या नोट कर लेंगे, नोट करके पॉइंट। Eratosthenes, who was a Greek philosopher, he is called as father of geography. Father of geography. And why he is called as father of geography? Because he has tried to first time map the earth. Because he had tried to map earth for the first time. Understood? So geography comes from the Greek word geographia, which is a combination of two words, geo and graphos, या geo and graphy. Geo means earth, graphy means to write, to describe, description of the earth. अब description of the earth में हम physical features भी पढ़ सकते हैं. We can also read about the factors which influence the migration of the human being, inhabitants. All these things will come under the definition of geography. Who is called as father of geography? Eratosthenes. Why he is called as father of geography? Because for the first time he has tried to map the India. या इंडियन मैप नहीं कह सकते हम, इंडिया स्पेशल नहीं थे, वो ग्रीक फिलोसफर थे. तो ही हैज ट्राइड टू मैप द अर्थ and as well as he has also tried to measure the circumference of the earth.
मतलब पूरा पेरीमीटर मेजर करने का मेजर किया था, इस वजह से ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। अंडरस्टूड? नाउ हैव यू एवर रेड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी? कभी देखा है आपने ऑफिशियल सिलेबस जहां पे ज्योग्राफी और ये सारी चीजें मेंशन होती हैं? सिलेबस नहीं देखा आपने? ओके, सो नोट डाउन द प्रीलिम सिलेबस फर्स्ट। यू वुड नो देयर आर कितने स्टेजेस हैं, बताओ मुझे। सिविल सर्विसेज में देयर आर 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, योर पर्सनालिटी टेस्ट स्टेज। तो प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है, मेंस का सिलेबस अलग है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन? हाँ, प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव बट क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर, यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई दिस एग्जाम। मेंस विल बी बेस्ड ऑन योर मेरिट। मेंस टोटल कितने नंबर का होता है? 250 का। मेंस 250 नंबर का ही होता है। हाँ, टोटल मार्क्स। मेंस मेंस 275 नहीं, 1750। हाँ, हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन योर मेंस एग्जाम? 9 पेपर्स। ओके, वेरी गुड। एंड हाउ मेनी पेपर्स विल बी काउंटेड फॉर मेरिट? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कितने पेपर्स होंगे जो मेरिट? 7। विच आर द 2 पेपर्स विच विल नॉट बी काउंटेड? लैंग्वेज पेपर। एंड लैंग्वेज में वन, एनी ऑफ द लैंग्वेज, एंड इंग्लिश कंपलसरी। इंग्लिश कंपलसरी और कोई लैंग्वेज का एक पेपर। आप मान लो मराठी चूज करते हैं, हिंदी चूज करते हैं, या कोई और लैंग्वेज हो सकता है, विच आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स का पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखो, यूपीएससी ने बहुत क्लियर कट हमें डिफिनेशन नहीं दिया है यूप सिलेबस का, बट वी विल ट्राई टू ब्रेकअप इट। पहले हम लोग एक बार सिलेबस लिख लेते हैं। राइट द प्रीलिम सिलेबस फर्स्ट। यूपीएससी प्रीलिम सिलेबस, और मैं ऑफिशियल सिलेबस आपको लिखवा रहा हूं। यूपीएससी प्रीलिम सिलेबस, एक बार इसको लिख लेंगे फिर समझेंगे इसको। यूपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी सिलेबस, ज्योग्राफी सिलेबस, यूपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी सिलेबस। इसमें नोट डाउन करेंगे फर्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसमें लिखेंगे फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिजिकल सोशल, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस। सर दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस, केवल इतना ही है ऑफिशियल सिलेबस में। कितना? इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस। सर इतने से हमें क्या पता चल जाएगा? पता चल गया हमें। देखो, हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है किसकी? इंडिया की। हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है वर्ल्ड की। माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ग्रासेस, मेजर ग्रासेस ऑफ द अर्थ, डेजर्ट्स ऑफ द अर्थ, ये सब फिजिकल फीचर्स में आ जाएंगे। तो ये सब हमें यहाँ पे पढ़नी है। सोशल मतलब हाउ सोसाइटी इज इम्पैक्टेड थ्रू ज्योग्राफी, वही ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा ये। देन वी हैव द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हाउ द जो रिसोर्सेस हैं हमारे एनवायरमेंट में, जो रिसोर्सेस अर्थ में पाई जा रही हैं, अर्थ के सरफेस पे, हाउ दे विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब इसमें मैंने सब आपको बता दिया, डिटेल सिलेबस नहीं लिखेंगे, केवल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस लिखेंगे। बाकी जैसे जैसे चैप्टर्स हमारा चलेगा उसके हिसाब से आपको चीजें पता चलती चलेंगी। सो दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। केवल एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या? इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। देन वी हैव द मेन सिलेबस एज वेल। 3-4 पॉइंट है, उसको भी नोट कर लेते हैं। देन वी कैन स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर। राइट, यूपीएससी मेन सिलेबस। यूपीएससी मेंस सिलेबस किस पेपर में आएगा पहले यही बताओ मुझे? ज्योग्राफी। इन विच जीएस पेपर इट विल कम? जीएस पेपर कितने होते हैं बताओ पहले मुझे, 4 या 5?
एसे इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज जीएस पेपर, एसे को भी हम जीएस पेपर ही कंसिडर करते हैं। अगर हमने एसे को जीएस पेपर 1 कंसिडर कर लिया तो दिस विल कम अंडर जीएस पेपर 2। अगर एसे को हमने जीएस पेपर कंसीडर नहीं किया है देन दिस विल कम अंडर जीएस पेपर 1। अगर मैं कहता हूं जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1, क्या क्या आते हैं उसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट बताओ मुझे। जीएस पेपर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है मेंस में? बोलो, डरो मत, बताओ। पॉलिटी और पॉलिटी और गवर्नेंस, और क्या आता है? एनीथिंग एल्स? यस? नो आइडिया? नाउ लिसन टू मी केयरफुली फॉर 10 minutes. There are two stages in the UPSC, because without knowing the pattern, without knowing the syllabus, you will not be able to comprehend the subject. आपको पढ़ना क्या है वही नहीं पता चलेगा, किस सब्जेक्ट से पढ़ना। मुझे पता है आपने पता होगा, बता नहीं पा रहे हो आप लोग, सुना होगा। सी, in mains examination there are total 9 papers. One is your English compulsory, it will be of 300 marks, it will be qualifying in nature. Qualifying in nature means this mark will not be added to your merit list. Then we have one of the languages from the 8th schedule of the Indian Constitution. You can choose any of the languages, Hindi, Marathi, Urdu, Sanskrit, Oriya, कुछ भी कर सकते हैं आप. This will come under language. These are two separate. Then we have a essay paper of 250 marks. Then we have GS paper 1. If we consider essay as GS paper 1, then it will be considered as GS paper 2. बट मैं बता रहा हूं जीएस पेपर 1 ऐसे ऑफिशियली कहा जाएगा जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में क्या आता है? हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, सोसाइटी, और वी हैव द ज्योग्राफी। ये 4 सब्जेक्ट मेजर हैं जीएस पेपर 1 में। कौन कौन से? हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी विल कम अंडर जीएस पेपर 1। देन वी हैव जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में क्या क्या आएगा? पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। GS paper 2 will comprise of polity, constitution, governance, social justice and international relation। ये 5 कोर टॉपिक्स हैं कहां के? GS पेपर 2 के। GS पेपर 3 में क्या क्या आ जाएगा? इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। GS पेपर 3। और सभी पेपर 250 नंबर के होंगे, 250 मार्क्स, और 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक 10 मार्कर होगा, 10 10 मार्कर होंगे, 10 15 मार्कर होंगे। There will be 10 questions of 10 marker and 15 questions of 15 marker. 10 questions of 15 marker, तो टोटल कितना हो गया? काउंट करो। अगर 10 questions will be of 10 marker तो 10 into 10 100, and 10 questions of 15 marks 150, 250 हो गया ना। यही पैटर्न फॉलो होता है। सो जीएस पेपर 3 में मैंने बता दिया 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं: इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आ जाएगा। जीएस पेपर 4 इज अबाउट ethics, integrity and aptitude, and then your optional paper, one optional subject but 2 papers। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, 2 होंगे। समझ में आ गया? तो दिस विल कम अंडर जीएस पेपर 1। अगर हम एसे को कंसीडर करते हैं तो जीएस पेपर 2, लेकिन अभी एसे को एसे के जैसे पढ़ते हैं, दिस विल कम अंडर जीएस पेपर 1। हाउ मेनी मार्क्स कैन बी अलॉटेड टू ज्योग्राफी? दैट वी सर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है पहले वो समझते हैं। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इफ वी ऑब्जर्व, near about on an average 15 questions have been asked, sometimes 10 questions, 12 questions, 9 questions, but अगर हम एवरेज देखेंगे पिछले 10 साल का, तो we can safely assume 12 to 15 questions will come from geography। this year's prelims examination geography 15 plus 17 18 तक क्वेश्चन आए थे इस बार के ज्योग्राफी में, but questions were tough? No, questions were on लॉजिक बेसिस, कॉमन सेंस बेसिस। जैसे इस बार क्वेश्चन अगर आपने पेपर देखा होगा तो पूछा था लॉन्गेस्ट बॉर्डर किन 2 कंट्रीज के बीच में है पूरे वर्ल्ड में? The answer was US and Canada। समझ में आ रही बात की नहीं? तो याद रखेंगे, how many questions can come in your UPSC prelims from geography? We can safely assume 12 to 15 questions per year out of prelims। तो कितने क्वेश्चन होते हैं बताओ? How many questions are there in prelims? GS paper 1, GS paper 1 100 questions, GS paper 2 CSAT में 80 questions होता है। General prelims exam will comprise of 2 papers, GS paper 1, GS paper 2। GS paper 1 is called as General Studies paper 1। GS paper 2 is also referred to as CSAT, General Studies paper 2 और CSAT। CSAT का फुल फॉर्म बताओ?
Very good. Civil services aptitude test. In civil services aptitude test, there will be 80 questions of 200 marks. But in GS paper 1, there will be 100 questions. 100 questions of 200 marks and 1/3 will be negative marking as well. कहां पर? GS पेपर 1 में. तो उस 100 क्वेश्चन में से आपको 12 to 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका ये. अगर हम देखेंगे यूपीएससी के मेंस में, तो मैंने बताया आपको कि जो जीएस पेपर 1 होगा दैट विल बी ऑफ 250 मार्क्स. टोटल कितने का होगा? 250 मार्क्स. और यहां पे आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगी 90 to 100 मार्क्स, समटाइम 100 प्लस एज वेल, बट वी कैन सेफली अज्यूम 90 to 100 मार्क्स, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी है ना उसमें. इंडियन सोसाइटी भी है, ज्योग्राफी भी है, और क्या है हमारे पास? हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. तो वी कैन सेफली अज्यूम इट विल बी इन द रेंज ऑफ 100 to 110 फ्रॉम दी ज्योग्राफी. आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा. 2-3 क्वेश्चन 15 मार्कर हो जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन 10 मार्कर हो जाते हैं फ्रॉम द ज्योग्राफी पॉइंट. क्लियर? नाउ नोट डाउन द सिलेबस, देन वी विल प्रोसीड विद द फर्स्ट चैप्टर. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस. distribution of key natural resources. Distribution of key natural resources across the world, including South Asia, and the Indian subcontinent, factors responsible for the location of, इसी में कंटिन्यू करेंगे, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries. Location of primary, secondary and tertiary sector industries and tertiary sector industries in various parts of the world, लिख लो, समझाता हूं. various parts of the world including India. ठीक. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल, ये पहला टॉपिक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज अक्रॉस वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया. सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे इसमें, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना. important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclones, etc. Geographical features, their locations. इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे. Geographical features and their location, geographical features and their location. Changes in critical geographical features, changes in
critical geographical features, changes in critical geographical features and in flora and fauna, and in flora and fauna, flora and fauna, and the effect of such changes, and the effect of, and the effect of such changes, and the effect of such changes. Done. Understood. So this is the official syllabus of UPSC. Only 2 points. Yes, only 2 points are mentioned in your UPSC official syllabus. क्लियर? बाकी चीजें नहीं. अब इसमें हमें पढ़ना क्या है वो समझो. फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मैंने बता दिया इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. इसमें आपको बहुत सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. फिजिकल फीचर्स मैंने बता दिया आपको, माउंटेन, प्लेट्यूज, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. क्लियर है? देन ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये सब प्रीलिम्स में भी आते हैं क्योंकि ये सब फिजिकल फीचर्स में आ जाएंगे. सुनामी, वोल्केनिक, अर्थक्वेक, साइक्लोन, प्लस प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी सेक्टर. सुना है ना आपने? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर क्या होता है बताओ? जैसे यहाँ पे दिया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज. की नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या रेयर अर्थ जो रिसोर्सेज है वो कहां पे मिलेगी हमें? अर्थ में. उनका क्या रोल होगा एनवायरमेंट में, या उनका क्या रोल होगा इकोनॉमी में, वो सारी चीजें. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर इंडस्ट्रीज? बताओ. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर सुना है आपने? हैव यू लिसन समडे इन एनी ऑफ द क्लासेस? बताओ. ओके. क्रॉप्स किस में आएंगे? प्राइमरी में. सेकेंडरी का एग्जांपल देखो. इकोनॉमी में जितनी भी सेक्टर्स हैं उनको 3 में डिवाइड किया जा सकता है. एक है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी which will focus mainly on the direct use of natural resources. कोई भी ऐसी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो यूज करेगी डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर. सर प्लीज गिव द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस. ये क्या हो गया है? प्राइमरी सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वेयर डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल बी डन. Understood? Examples: agriculture, fishing, farming, mining, extraction of oil and natural gas, and livestock. ये सब किस में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में. Then we have secondary sector. Secondary sector is that sector of the economy where construction and manufacturing will take place. Construction and manufacturing activity जितनी भी आप देख रहे हो वो सब किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में. Secondary sector is also called as manufacturing or industrial sector. Primary sector is also called as agriculture and allied sector. प्राइमरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, मतलब कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र. ये क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. देन वी हैव टेरिशरी सेक्टर. टेरिशरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर. टेरिशरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर. टेरिशरी सेक्टर में क्या होगा? टेरिशरी सेक्टर विल हेल्प टू ग्रो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. मींस tertiary sector is that sector of the economy which will assist in the growth of primary and secondary sector. So which are the examples which will come under the definition of tertiary sector? Transport, tourism, hospitality, retail shopping, retail banking, ये सब किस में आ जाएंगे? प्लस उसमें हम लोग और भी चीजें कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग. ये सब क्या है? फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, दिस विल कम अंडर टेरिशरी सेक्टर. आई होप आपको समझ में आ गया. तो वही चीज हमें पता करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइमरी सेक्टर को. एग्रीकल्चर क्या आप हर जगह कर सकते हो? एग्रीकल्चर वही किया जा सकता है जहां पे वाटर की व्यवस्था होगी, या तो नेचुरल वाटर की व्यवस्था होगी या तो आर्टिफिशियल वाटर की व्यवस्था होगी, तभी की जा सकती है. तो वही चीज हमें समझना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं. आप पढ़ो देखो. एंड सबकॉन्टिनेंट एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन. प्राइमरी सेक्टर कहां पे होगा? जो डायरेक्ट यूज करेगा नेचुरल रिसोर्सेज का. जहां नेचुरल रिसोर्स होगा वहीं तो करेगा. जो लैंड फर्टाइल ही नहीं होगी वहां एग्रीकल्चर किया जा सकता है क्या? एग्रीकल्चर कैन नॉट बी डन.
जहां पे वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल नहीं होंगे, वहां की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती। इन द सेम मैनर क्या हम हर जगह इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकते हैं? हम इंडस्ट्रीज वहीं सेटअप कर सकते हैं जहां से हमें रॉ मटेरियल्स बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाए, वाटर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, एंड दैट शुड आल्सो बी अवे फ्रॉम द सिटीज, सो दैट इट इज नॉट द पोल्यूटिंग इंडस्ट्री फॉर द पोल्यूटिंग सेक्टर फॉर द सिटीज। ऐसे ही सर्विसेज सेक्टर में अभी ये क्लासरूम थाने स्टेशन से 50 किलोमीटर अंदर होगा, कोई नहीं जाएगा क्लास करने। बात समझ में आ रही बात की नहीं? तो टेरिशरी सेक्टर के भी लोकेशन की बात करनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए विच शुड बी कंसीडर्ड वाइल इस्टेब्लिशिंग। वो हमें कहां पढ़ना है? इस टॉपिक में पढ़ना है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। उसके ऊपर क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं। ऑयल एंड गैस किस देश में पाया जाता है? वाई वेस्ट एशिया में कहा जाता है सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, वेनेजुएला में कैसे है, यूएस में कैसे है, ऐसे ही रसिया कैसे है ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर, ये सारी चीजें। इन द सेम मैनर इंडिया में क्या कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेस। महात्मा गांधी हैज टोल्ड अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेस टू satisfy the need of every person, but earth does not have enough resources to satisfy the greed of even single person। अर्थ के पास इनफ रिसोर्सेस हैं जिससे सभी इंसानों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन अगर किसी एक इंसान का लालच ही बढ़ जाए इतना कि वो अर्थ के पूरे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने पे आ जाए तो नहीं पूरी कर पाएगी अर्थ। सो अर्थ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। देन इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना, अर्थक्वेक क्या है, हाउ अर्थक्वेक ऑरिजिनेट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, हाउ व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, व्हाट आर दीस डिफरेंट थियरीज, सुनामी क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है, ये सारी चीजें। फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देन लोकेशन, कौन से लोकेशन में कौन सी ज्योग्राफिकल फीचर है, जिसमें हम लोग क्लाइमेट भी पढ़ रहे होंगे, मानसून भी पढ़ रहे होंगे, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Understood the syllabus from prelims point of view, from mains point of view as well. I hope, do you have any doubt till this point? Sources, what is the source that you will refer? कौन से sources आप पढ़ेंगे geography के लिए? Majid Hussain, but that is a very tricky book if you are not, your optional is not geography. अगर आपकी geography optional नहीं है तो I would not suggest to go with Majid Hussain. You can read some specific chapters but not the whole book. Anything else? NCRTs are the best source for geography, trust me. Every topper from the last 15 years have suggested that NCRTs are the best source for your geography if your optional is not geography. अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी है फिर सोर्सेस और एक्सटेंड हो जाएंगे, तो याद रखेंगे सोर्सेस दो तीन मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस? sources for geography from prelims point of view as well as from mains point of view. One will be your NCRT. Sir, which class NCRT you want to suggest? NCRT book. NCRT किस क्लास की? NCRT ज्योग्राफी। देखो, अगर आपका ज्योग्राफी बेसिक्स ठीक है, इफ योर ज्योग्राफी बेसिक्स इज ओके, देन I would suggest read 11th and 12th geography. But if your geography basics are not clear, for example, what are latitudes and longitudes? What is the concept of international dateline? What is rotation and revolution of the earth? What are different domains of the earth? What are the different layers of the atmosphere? अगर ये सब क्लियर नहीं है तो स्टार्ट विथ क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 6 टू क्लास 12th, क्लास 6 to class 12th, but special focus should be on 11th and 12th. याद रखेंगे, with special focus on 11th and 12th NCRTs, 11th and 12th NCRTs, 11th और 12th की NCRTs पर स्पेशल फोकस होना चाहिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, इफ यू वांट सम एडिशनल नॉलेज, प्लीज सजेस्ट व्हाट मी एल्स वी कैन डू। यू एल्स कैन डू रीड अ बुक known as GC Leong, specific chapters। GC Leong का नाम सुना है आपने? GC Leong की किताब हम पढ़ सकते हैं, but only specific chapters, not the whole book। GC Leong, GC Leong, only some chapters, only some chapters, only some chapters। Along with this, you must have an atlas for the geography।
एटलस इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट, ऑक्सफोर्ड एटलस और एनीथिंग एल्स। एटलस की बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए, एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस फॉर व्हाट पर्पस, मैपिंग पर्पस, मैपिंग पर्पस एवरी डे एटलीस्ट यू शुड गिव 10 मिनट्स फॉर मैपिंग पर्पस। हाँ, आप ऑक्सफोर्ड एटलस ले लो जो फिजिकल और उसमें जो कुछ कैसे दो, मतलब मैं नहीं समझा कौन कौन सी। मतलब जैसे वर्ल्ड का एटलस, हाँ हाँ, और इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक लेंगे, उसमें वर्ल्ड के बारे में भी दिया होगा लेकिन इंडिया के बारे में ज्यादा होगा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस करके आता है, वो हम ले सकते हैं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। सो दीज आर द टू सोर्सेस। हाँ, फॉर मराठी यू कैन रिफर, अगर इन पब्लिकेशंस एनसीईआरटी मराठीज में भी आती है, you can refer those books, NCERTs are also written in every languages, not only Marathi, they are also written in Gujarati as well. So for geography you can refer the Marathi version of geography. समझ में आ रही बात की नहीं? आप पढ़ो एनसीईआरटी ही, स्टेट, हाँ स्टेट अगर बोर्ड की बुक है तो वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी किताब है तो वो भी पढ़ सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट अगर एनसीईआरटी मिल रही है आपको इस पब्लिकेशन में, मतलब एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक मराठी वर्जन में मिल रहा है, गो विद दैट, ठीक है। एंड यूज सम ऑफ द वेबसाइट्स, use some of the websites such as PMF IS Geography, Lotus Arise Geography, इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं ये वेबसाइट। दो वेबसाइट सभी टॉपर्स आपको एक सजेस्ट करेंगे वेबसाइट्स, विच आर द ऑनलाइन वेबसाइट। एक है पीएमएफ आईएस ज्योग्राफी, आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे विच इंपॉर्टेंट मैपिंग एज वेल, एंड वन इज योर लोटस एराइज, लोटस एराइज ज्योग्राफी, लोटस एराइज ज्योग्राफी। और अगर मराठी में होगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो, साइट पे मिल जाएगा, अब तो गूगल है सब ट्रांसलेट कर देगा, जिस लैंग्वेज में चाहोगे उस लैंग्वेज में हो जाएगा। आज तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और सम स्पेसिफिक बुक अगर होगा कुछ मराठी के लिए तो वो मैं चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा ज्योग्राफी का, क्या है प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस और सोर्सेस क्या है, क्लियर है। अगर आपकी ज्योग्राफी, मैं लेकिन सजेस्ट करूंगा, अगर जैसे आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देना है, देना एग्जाम नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2025 में, अगर 2025 में देना है तो अभी टाइम है हमारे पास, लेकिन 6 महीने बचे हैं क्योंकि 25 मई को आई थिंक एग्जाम है। तो आई वुड सजेस्ट कि गो विथ 11th एंड 12th, बट इफ यू हैव टाइम प्लीज रीड 6 to 10th एज वेल, इससे आपका बेसिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड जब भी मेरी क्लास हो एटलीस्ट रीड 2 चैप्टर्स ऑन दैट डे, फ्रॉम क्लास 6 to 10, कोई 2 चैप्टर पढ़ के आओ, कोई भी डाउट है बुक लेके आओ कि सर ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा, ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया 11th से या फिर 12th से या 6 to 10 से। आई वुड सजेस्ट प्लीज मत पढ़ो और कोई सोर्स, बट ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज आर अ मस्ट। समझ में आ गई बात? इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी पॉइंट प्लीज आस्क, यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो, सम ऑफ द यूट्यूब वीडियो। इसमें मैं आपको चैप्टर से स्पेसिफाई करके बता दूंगा, एक दिन जीसी लॉन्ग की पूरा सिलेबस ले आऊंगा और वहां पे आपको चैप्टर हाईलाइट करके बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हम एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ महाराष्ट्र ज्योग्राफी के लिए सबसे पहली चीज तो मैपिंग मस्ट है। कोई एक किताब आती पब्लिकेशन करके, बालाजी पब्लिकेशन की होती है, लेट मी क्रॉस वेरीफाई दिस, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, 2-3 सोर्सेज से मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे एक हाथ आइडिया है बुक का, बट आई वुड नॉट सजेस्ट विदाउट चेकिंग इट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको महाराष्ट्र स्पेशल ज्योग्राफी के लिए भी बता दूंगा, बट मैपिंग विल बी इंडिस्पेंसेबल पार्ट। तो महाराष्ट्र ज्योग्राफी के लिए आपके, अगर महाराष्ट्र एटलस आपको मिल रहा है स्पेशल, वो हम रिफर कर सकते हैं। महाराष्ट्र के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम देख सकते हैं, कौन कौन से माउंटेन फीचर, फिजिकल फीचर्स या लोकेशन कैसे कैसे है। मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर इतने सिलेबस के साथ प्लस महाराष्ट्र में कुछ स्पेशल ज्योग्राफी के लिए बुक है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपडेट करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। आई विल डिस्कस दिस मराठी बुक विच इज द स्पेशल मराठी बुक एंड द महाराष्ट्र स्पेशल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएससी ओनली, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बुक नेक्स्ट क्लास में सजेस्ट करता हूँ, लेट मी क्रॉस वेरीफाई इट। आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया, अब स्टार्ट करें हम लोग अपने, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। सुना है आपने इनको? सुना जरूर होगा आपने, सुना था स्कूल में। चलो कोई बात नहीं, आज आप सीख भी जाओगे।
Okay. So we are going to discuss the first chapter, which is latitude and longitude. This is the आप कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे. ये समझ जाएंगे तो कल नेक्स्ट क्लास में आपको सोलर सिस्टम पढ़ा सकता हूँ. सोलर सिस्टम, उसमें प्लैनेट्स पढ़ लेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स, हाउ यूनिवर्स हैज ओरिजिनेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, वो सारी चीजें भी हम समझ सकते हैं. सो टॉपिक इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. latitudes and longitudes. Latitudes and longitude, concept of time, international date line and concept of time. International date line and concept of time. So these are the topics which we are going to cover. Concept of time. चलो बताओ मुझे क्या होता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. बताओ. लैटिट्यूड सुना है आपने, बताओ क्या होता है. मेजर के लिए जो डायमीटर होता है अर्थ का, उसको बोलेंगे हम लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड. किसको बता रहे हो आप. सुना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. अक्षांश और देशांतर. Latitudes are in Hindi called as अक्षांश and in longitudes are called as देशांतर. अक्षांश एंड देशांतर सुना है आपने. लैटिट्यूड का बताओ क्या होते हैं. कोई बात नहीं, डरो मत, नहीं आएगा तो उसी के लिए तो मैं आया हूं आपको बताने. बेसिक्स ही तो पढ़ाऊंगा आपको. कोई आइडिया है लैटिट्यूड. इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, सुना है आपने. इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन. कोई बात नहीं, आपने सुना है लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स. बताओ, डू यू हैव सम आइडिया. कोई बात नहीं, मैं आपको पहले 5 मिनट समझाता हूं, फिर आपको नोट्स देता हूं प्रॉपर. देखो, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस, दे आर नॉट द रियल लाइंस. कि अभी मैं यहां पे आपको बता दूं कि देयर इज समथिंग नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ. तो आप अर्थ पे सर्च करने चले जाओ, सर 23.5 डिग्री पे तो दिख ही नहीं रहा है. नहीं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस. दीज आर ड्रॉन फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ग्लोब, फॉर द डिफाइनिंग ऑफ अ प्लेस और लोकेशन. So याद रखेंगे, latitudes and longitudes are the imaginary lines which are drawn for the purpose of determining the location and time of the different places on the surface of earth. Latitudes क्या है. Latitudes are the imaginary lines which are horizontal in nature. Latitudes क्या है, horizontal in nature है. They are running from east to west or west to east. Then we have the known as longitudes. Longitude क्या है, दे आर वर्टिकल लाइंस. अगर देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं. देखो, अगर सपोज करो दिस इज योर अर्थ, ये अर्थ है. अर्थ को अगर हमने यहां पे एक मान लिया, दिस इज द हाफ ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड एज इक्वेटर. 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर. 0 डिग्री इज कॉल्ड एज इक्वेटर. अगर अब 0 डिग्री से जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, ये आ गया मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से ऊपर जा सकते हैं. कितना जा सकते हैं हम लोग. यहां पे एक पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ. दिस इज कॉल्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ, विच इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल. एंड दिस नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ इज, आपने पोल स्टार सुना होगा, ध्रुव तारा. ध्रुव तारा सुना है ना. ध्रुव तारा के एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की गई है जो अर्थ के नॉर्थ से है. इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ. ये होता है नॉर्थ पोल. ऐसे ही 90 डिग्री साउथ भी है, उसको हम बोलते हैं क्या, 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल. 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल. दिस इज कॉल्ड एज साउथ पोल. पहले ध्यान से समझ लो, फिर इसको ड्रॉ कर लेना, साउथ पोल. ठीक, अब समझो 0 डिग्री हो गया. ऐसे ही यहां से हम 23 अर्थ के सेंटर से, मान लो ये अर्थ का सेंटर है, हमने यहां से 23.5 डिग्री अगर ऊपर ड्रॉ कर दिया, दिस इज द 23.5 डिग्री नॉर्थ. 23.5 डिग्री नॉर्थ. अगर हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ ड्रॉ किया तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस लाइन इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस लाइन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कर्क रेखा इसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसी तरीके से अगर हमने 23.5 डिग्री साउथ मेजर किया, ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज 23.5 डिग्री साउथ, विच विल बी कॉल्ड एज, बताओ क्या कहा जाता है इसको. 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड एज
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर इसी तरीके से अगर हम और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज 66, मतलब मैं मेजर करता चला जा रहा हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कहां तक जा सकते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में। तो ये 66.5 डिग्री वाला क्या कहा जाता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड एज आर्कटिक सर्किल। इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। क्यों, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन को सर्किल कर रहा होता है, ये आर्कटिक रीजन को सर्किल करता है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। ऐसे ही अगर हम यहां नीचे आएंगे, दिस इज कॉल्ड एज 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, दिस इज कॉल्ड एज अंटार्कटिक सर्किल, विच इज कॉल्ड एज अंटार्कटिक सर्कल। समझ में आया, मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया है लाइन, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। 0 डिग्री, इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दीज आर लैटिट्यूड्स, दीज आर लैटिट्यूड्स जो कि इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेडिएट हो रहे हैं। अगर हमने इसको कंसीडर कर लिया इक्वेटर, तो इसके नॉर्थ में चलते चले जाएंगे, हमें क्या मिलता चला जाएगा, लैटिट्यूड्स। 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, 4 डिग्री लैटिट्यूड, ये क्या है, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, दे आर कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बिकॉज दीज, आप कह सकते हैं, इमेजिनरी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। 1 डिग्री विल नेवर इंटरसेक्ट विथ 2 डिग्री, 2 डिग्री विल नेवर इंटरसेक्ट विथ 3 डिग्री, ये पूरा कंप्लीट सर्किल करेगा अर्थ पर, इसीलिए इनको कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो याद रखेंगे, लैटिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर, some of the important parallels of latitude are equator with 0 degree, tropic of cancer at 23.5 degree north, tropic of capricorn at 23.5 degree south, and arctic circle 66.5 degree north, antarctic circle 66.5 degree south, north pole at 90 degree north and south pole at 90 degree south. These are important parallels of latitude. latitude समझ में आया, ये है latitude आपके लिए। इसी तरीके से अगर हम longitude की बात करेंगे, अगर ये लॉन्गिट्यूड है, यहां पे नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। यहां पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लाइन मिला रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थ। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ऐसा शेप में हो गया, बस समझने के लिए आप समझ लो, अर्थ ऐसा होता नहीं है। अर्थ का शेप कैसा है, ओवल, उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। नो, अर्थ इज नॉट स्फेरिकल, अर्थ इज जियोइड। अर्थ का शेप, ज्योग्राफी में एक वर्ड यूज होता है, ध्यान रखेंगे, द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। जियोइड क्या होता है, अर्थ लाइक। सर अर्थ लाइक क्या है, अर्थ लाइक शेप मतलब होता है विच इज फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम, फ्लैट होगा टॉप और बॉटम पे, फ्लैट आउट होगा टॉप और बॉटम पे, और इक्वेटोरियल रीजन पे थोड़ा सा बल्ज होगा, बल्ज मतलब बाहर की तरफ निकलेगा। हाँ, समझ में आ गई बात की नहीं। सो व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, जियोइड। जियोइड मतलब अर्थ लाइक। कोई भी पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, ओवल मत बोलो, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, जियोइड। जियोइड इज अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप इज यूनिक, यूनिक, इट इज फ्लैट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, चपटी है धरती और बल्जिंग है इक्वेटर से। समझ में आ रही बात की, ये है शेप ऑफ द अर्थ। तो अगर हम यहां से अगर इस चीज को कंसीडर करें, तो मान लो ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोला था आपने, 0 डिग्री लैटिट्यूड, दिस वाज कॉल्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज कॉल्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यहां से फिर इमर्ज होगी एक लाइन, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इमर्ज होगी, इस तरीके से आएगा, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री इधर हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज ईस्ट, दिस कैन बी कॉल्ड एज वेस्ट। तो ऐसे ही सेकेंड डिग्री भी निकलेगी, थर्ड डिग्री भी निकलेगी, इस तरीके से रेडिएट होगी कि नहीं होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये है आपका लॉन्गिट्यूड्स, दीज आर लॉन्गिट्यूड। सब आके कहां मिलेंगी, पोल पर, ये पोल पे यहां पे आके सब कन्वर्ज हो जाएंगे। इनको कहा जाता है मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियंस या इंपॉर्टेंट मेरिडियन। 0 डिग्री इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री longitude is called as international date line, 0 degree longitude is called as
प्राइम मेरिडियन या फर्स्ट मेरिडियन, क्या कहा जाता है इसको, प्राइम मेरिडियन या फर्स्ट मेरिडियन, याद रखेंगे। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड 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 मतलब लेटी हुई लाइन है, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई लाइन है, लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइंस हैं। समझ में आ रहा है कुछ चीजें आपको। अच्छा सर अब मुझे बता दो आप एक चीज ये कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों ड्रॉ करना है हमें, व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई वी हैव टू ड्रॉ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, लैटिट्यूड जो होता है वो क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए हमें हेल्प करता है। जैसे जो प्लेस इस वाले रीजन में अवेलेबल होगा, बहुत ध्यान से समझना। पहले मुझे आप ये बताओ, आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक बेसिक आइडिया लग गया। Latitude and longitudes are nothing but the horizontal lines. They are drawn for the purpose of making life on earth convenient, so that we can reach any places accurately, so that we can determine the climate of any place, so that we can determine what will be the weather of any place at any point of time, so that we can determine the time of any place, so that we can determine the date of any place. अब आपसे पूछा जाएगा which of the following is important, which of the following is important for determining the location of any place। अगर लोकेशन ऑफ एनी प्लेस हमें डिटरमाइन करना होगा उसके लिए हमें जरूरी होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों। क्यों, फॉर एग्जांपल मुझे मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है, सपोज करो इस पॉइंट पे मुझे पहुंचना है, तो इस वाले पॉइंट से कोई तो लॉन्गिट्यूड जा रहा होगा और कोई तो लैटिट्यूड जा रहा होगा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये प्लेस नहीं है। अगर हमें पता चल गया, मान लो ये है 72, मान लो हमने कह दिया कि ये वाली लाइन जो है ये है 87 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मैं बोल सकता हूं ना, अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इधर जाऊंगा तो ईस्ट होगा, इधर जाएगा तो वेस्ट होगा, तो मैं बोल सकता हूं ना ये 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। वैसे इधर जाऊंगा तो क्या होगा, 1 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, बोल सकता हूं ना मैं। मान लो कोई प्लेस यहाँ पे लोकेटेड है, ये है 87 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही मान लो अगर हमने इसी वाले से इमेजिन किया तो ये वाला पॉइंट अगर यहां पर रहा होगा, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मान लो 87 डिग्री ईस्ट और ये 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। अब मुझे पता चल गया मुझे 87 डिग्री ईस्ट जाना है, 70 डिग्री नॉर्थ जाना है, तो मैं इस प्लेस पे पहुंच जाऊंगा। तो इस प्लेस का डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, 70 डिग्री नॉर्थ एंड 87 डिग्री ईस्ट, पहुंच जाऊंगा मैं। तो याद रखेंगे जो इक्वेटर होता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। इस वाले हेमिस्फेयर को क्या बोलोगे, नदर्न हेमिस्फेयर। ये नदर्न हेमिस्फेयर ही तो है, ये क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर है। समझ में आ रही बात की नहीं। और जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। समझ में आ गई बात। तो लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू Eastern and Western Hemisphere. If we have to accurately reach to any places, then we have to consider latitudes and longitude both. Latitude and longitude का जो इंटरसेक्शन होगा हमें किसी प्लेस पे एक्यूरेटली पहुंचा देगा। जो आप जीपीएस पे डालते हो कोई भी एड्रेस, आपको कैसे वो पहुंचा देता है, विद द हेल्प ऑफ दिस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। इस प्लेस का कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा, हमने मैप पे डाला, मैप हमको ड्रॉ करके यहां ले आके पहुंचा देगा, इस पॉइंट पे छोड़ देगा। उसी से तो पॉसिबल हो रहा है। जीपीएस ये सब किस पे काम कर रहे हैं, विद द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया सबको, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। तो 0 डिग्री को कहा जाएगा क्या, प्राइम मेरिडियन। इसी के पीछे 0 डिग्री के पीछे एक लाइन होगी जिसको क्या बोला जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज, अभी बताया था, बताओ। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहा जाता है बताओ, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन यूज होता है किसके लिए, इंटरनेशनल डेट लाइन यूज होता है डेट डिटरमाइन करने के लिए। इंटरनेशनल डेट लाइन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेट एंड प्राइम मेरिडियन। याद रखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में से कौन सा ऐसा है जो टाइम और डेट डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइम एंड डेट ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ एंड लैटिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। जैसे जो कंट्री इस रीजन में लोकेटेड होगा वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, जैसे जैसे हम पोल के पास जाएंगे वो रीजन ठंडा होता जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना। अच्छा जैसे मैंने बताया ना, ये कौन सी लाइन है बताओ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में कौन सी लाइन है ये, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कौन सी लाइन होगी, कैप्रिकॉर्न। वेरी गुड। 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सी लाइन होगी,
इन दोनों प्लेसेस के बीच में जो प्लेसेस लोकेटेड होंगे उन्हें कहा जाता है दे आर लोकेटेड इन द टॉरिड जोन। क्यों? क्योंकि अर्थ जो सन है, मान लो अगर यहाँ पे सन है, सन की रेज जो सबसे ज्यादा पड़ती है कहां पड़ती है पता है क्या आपको? टॉरिड जोन में ही। सबसे ज्यादा सन की रेज कहां पड़ती है? टॉरिड जोन में। सन की रेज हमेशा ओवरहेड होती है इस वाले रीजन में, जो भी कंट्रीज होंगी। तो इसीलिए इस वाले रीजन को कहा जाता है टॉरिड जोन, TORRID, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मतलब, टॉरिड जोन को डिफिनेशन क्या हो जाएगी टॉरिड जोन की बताओ? टॉरिड जोन इज दैट जोन ऑफ द अर्थ विच इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड टॉरिड जोन मतलब दिस रीजन विल रिसीव द मैक्सिमम हीट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो कंट्रीज टॉरिड जोन में लोकेटेड होंगी वहां पर मैक्सिमम हीट रिसीव होने वाला है, इसीलिए उसका नाम क्या है? टॉरिड जोन। समझ में आई बात? टॉरिड जोन क्या है? तो टॉरिड जोन इज दैट जोन ऑफ द अर्थ विच इज लोकेटेड बिटवीन, बताओ समझ नहीं रहे हो क्या मैं क्या बता रहा हूं? हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब 23.5 डिग्री साउथ। इस प्लेस में जो लोकेटेड होगा उसको क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन। अब मुझे बताओ उस प्लेस को क्या बोलेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल, कहां है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल? नदर या सदर्न हेमिस्फेयर में? नदर्न हेमिस्फेयर में। उसे क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। मतलब यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट होगा, टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट 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 जोन, दिस विल बी कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फेयर में है तो क्या कहा जाएगा? नॉर्थ टेम्परेट जोन। साउथ में होगा तो इसी को क्या बोला जाएगा? तो साउथ टेम्परेट जोन किसके किसके बीच में लोकेटेड है बताओ जल्दी से? साउथ टेम्परेट जोन इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्किल। वेरी गुड। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में जो रीजन अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे? और अंटार्कटिक सर्किल, इस वाले इसको रीजन को भी तो कुछ बोलते होंगे सर। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इस वाले रीजन को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड। और इसमें सबसे कम होगा यहाँ पे, और सन की रेज कभी भी डायरेक्टली पड़ेंगे ही नहीं, स्लैंटिंग जाएंगी, तिरछी जाएंगी। इसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे बर्फ हमेशा जमी रहेगी। और इसको भी बोलते हैं हम लोग क्या? फ्रिजिड जोन। दिस इज कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अगर इसको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो आराम से। फिर हम लोग आपको, मैं आपको प्रॉपर नोट्स दे देता हूं इस पे। नोट डाउन करो इसको, जल्दी से ड्रॉ करो। फिर मैं आपको प्रॉपर नोट्स दे देता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड। ये पहले आप ड्रॉ कर लो, इसमें से जो भी चीजें हैं डाउट। ये 70 डिग्री तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको आप नहीं लिखोगे चलेगा। ये 70 डिग्री, बाकी ड्रॉ कर लो अपने हिसाब से। और कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, मैं ये एक लाइन जो एक्स्ट्रा ड्रॉ की है 1 डिग्री समझाने के लिए, इसको भी रिमूव कर देता हूँ ऐसे। तो ये मेरा इक्वेटर हो जाएगा। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 0 डिग्री इज कॉल्ड एज इक्वेटर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, मैं यहां लिख भी देता हूं वो पॉइंट जो मैंने बताया था आपको, कि जो लॉन्गिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड किसके लिए यूज होता है बताओ? अभी बताया, टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट, टू डिटरमाइन टाइम एंड डेट क्या यूज होगा? लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड किसके लिए होगा बताओ? वेरी गुड। लैटिट्यूड विल इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड सीजन। क्लाइमेट एंड सीजन, या वेदर भी हम कह सकते हैं। क्लाइमेट एंड सीजन लिखो, फिर मैं आपको प्रॉपर नोट्स देता हूं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। ओके। डिग्रीज इंपॉर्टेंट नोट करना, अभी एक मैं नोट्स दूंगा तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक बार आप रफली एक ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। 23 डिग्री हाफ। 23.5 डिग्री नॉर्थ। हाँ, 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हाँ, हाँ, ये दोनों बीच में तो टॉरिड जोन बोलते हैं। हाँ, ऐसे प्लेसेस, हाँ वेरी गुड, ऐसे प्लेसेस जो अभी डिफिनीशन में लिखवाऊंगा, सिर्फ आप ड्रॉ करके ऐसे लिख लो। उसमें डिफिनीशन में सप्लाई सारी लिखवाने वाला हूँ अभी आपको, कि बस आप ये इमेज ड्रॉ करो। बस मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, टॉरिड जोन क्या है ये सब उसके डिफिनीशंस लिखवाऊंगा। एक मैपिंग देके आपको मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहा है, ताकि मैं जो पॉइंट बोलूं आप उसको अच्छे से समझ सको। नहीं नहीं, प्राइम मेरिडियन नॉर्थ को नहीं बोलते। ये पूरी लाइन नॉर्थ से लेके साउथ तक आ रही है ना, इस पूरी लाइन को ही बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। यहाँ यहाँ ऐसा केस नहीं है नॉर्थ पोल में कुछ बोलेंगे। यहाँ पे ये पूरी लाइन आ रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी लाइन को ही 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन। इसी के पीछे एकदम मिलेगा आपको 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इधर हुआ, 180 डिग्री उधर हुआ, तो 360 डिग्री पूरा हो गया। समझ में? ये लाइन है, ये पोल वही है। नॉर्थ जो प्राइमरी लॉन्गिट्यूड होते हैं वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होंगे, साउथ में जाके मिल जाएंगे। नॉर्थ से इमर्ज होंगे, साउथ में जाके मिल जाएंगे। ये ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। समझ में आया? हाँ। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री। इसके पीछे एग्जैक्ट पीछे मिलेगा आपको 180 डिग्री। ये सेमी सर्कल्स हैं। 0 डिग्री आएगा सेमी सर्कल नॉर्थ से साउथ, इसी के पीछे 180 डिग्री।
हो गया, नोट्स लिखे अब हम लोग प्रॉपर। ये वाला रफ कर दूं मैं, ये वाला इमेज आपने बना लिया, चलो कुछ प्रॉपर नोट्स ले लेते हैं, तो उससे चीजें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा मैथ के साथ साथ, फिर आगे देखेंगे। ये वाला मैप मैं रखा। ओके, इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, मैं लिखता भी हूं आप लिखो भी, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, latitudes and longitudes are imaginary lines, are imaginary lines used to determine, used to determine, used to determine the location of a place on the earth, the location of a place on earth. ये फर्स्ट पॉइंट हमने नोट कर लिया। फिर द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, ये भी लिखो, द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, जियोइड हाईलाइट करके लिखो इसको, जियोइड मतलब अर्थ लाइक, अर्थ लाइक, अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप, and the location of a place, and the location of a place, and a location of a place on the earth, on the earth can be mentioned, can be mentioned in terms of, can be mentioned in terms of latitudes and longitude. I hope आपको सभी पॉइंट अब समझ में आ रहे होंगे। यस, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, अगर नहीं आएगा सर इसका मतलब क्या है बता दो तो प्लीज पूछ लेना, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली इज, द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली इज, क्या हो जाएगा न्यू दिल्ली का लोकेशन, 28 डिग्री नॉर्थ, 28 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट। ईस्ट बोलूंगा तो लॉन्गिट्यूड होगा या लेटीट्यूड होगा बताओ, जब ईस्ट बोलूंगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वेरी गुड। जब मैं 28 डिग्री नॉर्थ बोलूंगा मतलब मुझे 28 डिग्री नॉर्थ में रहना है, और इधर से आऊंगा 77, 28 और 77 के इंटरसेक्शन पे मुझे न्यू दिल्ली मिल गया। अब वहां पे भी बहुत सारे प्लेसेस होंगे तो हो जाएगा 28.1, 28 डिग्री 1 सेकेंड, 28 डिग्री 2 सेकेंड, मतलब डिवाइड कर सकते हैं ऐसे किसी भी प्लेस को। समझ में आई बात की नहीं? तो ये पॉइंट आपने लिखा बेसिक्स के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें लैटिट्यूड के बारे में, राइट, लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं लिखो, लैटिट्यूड्स इसमें लिखेंगे, राइट, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस, लैटिट्यूड इज द angular distance, latitude is the angular distance of a point on the earth surface, of a point on the earth surface, a point on the earth surface measured in degrees, measured in degrees from the center of the earth, from the center of the earth, from the center of the earth, सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर होता है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना, जो लैटिट्यूड होती है दीज आर द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, यहां लिख लेना हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, दीज आर हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस। अच्छा मुझे बताओ आप कि जैसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है लैटिट्यूड में, तो हर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में एवरेज डिस्टेंस कितना होता है?
अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो होगा नहीं 1-1 किलोमीटर का होगा, 1-1 किलोमीटर का होता तो 90 किलोमीटर की अर्थ 90 किलोमीटर की है, अर्थ तो बहुत लंबी है। तो जो 1 डिग्री होता है, जैसे 0 डिग्री वाला लाइन, फिर 1 डिग्री उसके ऊपर देखने को मिलेगा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो हर एक कॉन्जिक्यूटिव डिग्री में कितने का डिस्टेंस होगा? ऑन एन एवरेज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी नोट कर लो। अच्छा लिखो, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, ये एवरेज डिस्टेंस है, ध्यान रखेंगे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive latitudes, any two consecutive degrees of latitude, is 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं बता के आ रहा हूं। समझ पाया ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री के बीच में एवरेज डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि सब में बराबर होती है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है, लेकिन हमने एवरेज ले लिया है कितना? 111 किलोमीटर। तो ये हो गया लैटिट्यूड। अब कुछ लिखेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लिखा ये पॉइंट? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो पहले मैंने आपको मैप से बेहतरीन तरीके से समझा दिया, आपको आई थिंक समझ में आ गया है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है कोई तो पूछ लेना लास्ट में, ठीक है। अब लिखो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब हम लैटिट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स को देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसमें लिखेंगे बिसाइड्स द इक्वेटर, बिसाइड्स द इक्वेटर विच इज at 0 degree, beside the equator at 0 degree, the north pole, the north pole which is at 90 degree, 90 degree north pole, and the south pole, and the south pole which is at 90 degrees south, 90 degrees south. There are four important parallels of latitude. There are four important parallels of latitude. There are four important parallels of latitude. कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं? लिखो इसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वन इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां देखने को मिलेगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फेयर, इन नदर्न हेमिस्फेयर, इन नदर्न हेमिस्फेयर, इन नदर्न हेमिस्फेयर। सेकेंड लिखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नोट डाउन कर लो सब, ट्रॉपिक ऑफ, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा फिर ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ इन सदर्न हेमिस्फेयर, इन सदर्न हेमिस्फेयर, इन सदर्न हेमिस्फेयर। देन आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल कहां जाएगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, north of the equator. Then we have fourth, Antarctic circle, Antarctic circle 66.5 degrees south of the equator. आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसमें भी किसी भी स्टूडेंट को आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है क्या? अब यहाँ पे एक आपको होमवर्क दूं, करेंगे आप? मुझे बताओ, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन है, तो ये बहुत सारे कंट्रीज से होके जाती होगी, क्या इंडिया से कौन सी लाइन होके जाती है इन तीनों में से? बताओ, चारों में से। हाँ, कितने स्टेट से जाती है? 9, 10, 8 स्टेट्स। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 8 स्टेट्स। कौन कौन से बता सकते हो? गुजरात नहीं, यूपी से भी नहीं जाता। देखो,
इन चारों लाइन में से इंडिया से पास होने वाली लाइन कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और उसको हम कैसे याद रखेंगे? देयर इज अ ट्रिक इन हिंदी, इसको हम बोलते हैं मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। कौन कौन से स्टेट हो गए देखो, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, त्रिपुरा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल कह सकते हैं ना पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल, र से राजस्थान, र से राजस्थान, ग से गुजरात, गुजरात, म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। समझ में आ गया? तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर थ्रू विच टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? 8 स्टेट्स। हमें याद भी हो गया। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया। तो देयर आर 8 स्टेट्स, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 8 स्टेट्स हो गए ना? तो याद रखेंगे। और आपको एक होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क आप करके आएंगे। जैसे मैंने बताया आपको केवल इंडिया भर से तो टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता नहीं होगा, आपको नेम ऑफ द कंट्रीज और किस कॉन्टिनेंट से पास होती हैं ये तीनों लाइनें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज वेल एज इक्वेटर। क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूं, आपको क्या पता करना है। होमवर्क आपका क्या रहेगा? फाइंड आउट, ये दूसरा होमवर्क नोट करो, थोड़ा सा आप मैपिंग वर्क भी करोगे, मैं तो बता ही सकता हूं, आप भी कर सकते हो गूगल करके। फाइंड आउट थ्रू विच कंट्रीज, थ्रू विच कंट्रीज, फाइंड आउट थ्रू विच कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एमपीएससी में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पासेस, पासेस, ठीक। कंट्रीज एज वेल एज कॉन्टिनेंट, एज वेल एज कॉन्टिनेंट। मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं कैसे आपको करना है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, तो क्या ये इंडोनेशिया से भी पास होता है? क्या ये मलेशिया से भी पास होता है? क्या ये यूरोप में कौन सी कंट्री से पास होता है? पहले तो कॉन्टिनेंट लिखो, कौन कौन से कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट वाइज कौन से कंट्री में। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूरोप से पास हो रही है तो कौन कौन से कंट्री से पास हो रही है? अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका से तो होगी नहीं कभी, अफ्रीका तो नीचे आ गया। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से पास हो रही है तो एशिया की कौन कौन सी कंट्री आ जाएंगी? आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से करना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके नोट चेक करूंगा प्रॉपर, जो जो होमवर्क दिया। पहला होमवर्क क्या दिया मैंने आपको बताओ? फर्स्ट होमवर्क मैंने दिया था आपको इंडिया का क्या फर्स्ट, बताओ, लिखा ना पहला होमवर्क मैंने कहा था नोट डाउन करो, यहाँ पे नहीं किया? हाँ कोस्टल बॉर्डर, हाँ कोस्टल स्टेट्स, हाँ इंडिया और उनका बॉर्डर लेंथ। और दूसरा होमवर्क क्या दे रहा हूं आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कॉन्टिनेंट और उस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री से पास होता है। सेम वे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किन किन कॉन्टिनेंट और किन किन कंट्री से पास होता है। इक्वेटर किन किन कॉन्टिनेंट और किन किन कंट्री से पास होता है। आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की, कैसे इक्वेटर का याद करेंगे, ये सारी चीजें करके आएंगे। अच्छा यही नहीं, अब आप देखो एक चीज, वो एक क्वेश्चन मैं और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर ऑल द थ्री लाइंस पासेस। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, जैसे आपको सुना होगा एशिया, हम एशियन कॉन्टिनेंट में है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट भी है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो कौन से कॉन्टिनेंट से ये तीनों लाइन पास होती है? अफ्रीकन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द थ्री लाइंस विल पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी और इक्वेटर भी। सो ऑल द थ्री लाइंस विल पास थ्रू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। समझ में आ गया सबको? ये पॉइंट पता कर लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब वो जो हीट जोन वाला बताया था टॉरिड, उसका भी डिफिनेशन लिख लो। जो भी आपको होमवर्क दूंगा मैपिंग वर्क करने के लिए उसको जरूर करेंगे, तो उससे आपको और इंटरेस्ट डेवलप होगा सब्जेक्ट में। नहीं तो ज्योग्राफी बिना मैपिंग के, बिना कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ही नहीं। नाउ राइट लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूडनल, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इसी में, लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ।
लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। इसमें लिखो कुछ पॉइंट्स। राइट, द एरिया बिटवीन या द प्लेसेस बिटवीन, the places between tropic of cancer, the places between tropic of cancer and tropic of capricorn, tropic of capricorn। अब मैं यहाँ पे डिग्रीज नहीं लिखूंगा, वो आपको पता है। द प्लेसेस लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर said to be in torrid zone, said to be in torrid zone। अच्छा, इसका स्पेशल फीचर क्या होगा टॉरिड जोन का? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट टॉरिड जोन के नीचे। द मिड डे सन, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, एग्जैक्टली ओवरहेड, एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year, at least once a year, at least once a year on all latitudes, on all latitudes, on all latitudes between, on all latitudes between tropic of cancer and capricorn। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में सन ओवरहेड होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। और इस रीजन में सबसे ज्यादा हीट रिसीव होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और याद रखेंगे दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, लिख लो, रिसीव्स मैक्सिमम हीट, रिसीव्स मैक्सिमम हीट। क्यों? क्योंकि सन ओवरहेड है तो इसमें मैक्सिमम हीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एरिया बाउंडेड बाई, द एरियाज, द एरियाज बाउंडेड बाई, द एरियाज बाउंडेड बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द एरियाज बाउंडेड बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and Arctic Circle, and Arctic Circle in the northern hemisphere, in northern hemisphere, in northern hemisphere, Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn, Tropic of Capricorn, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle, Antarctic Circle, Antarctic Circle in southern hemisphere, in southern hemisphere, in southern hemisphere have moderate temperature, have moderate temperature, and that is why they are called as, बताओ क्या कहा जाता है? टेम्परेट, एंड देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, बताया ना अभी, एंड देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो क्या कहा जाएगा? नॉट टेम्परेट जोन। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो क्या कहा जाएगा? साउथ टेम्परेट जोन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो मैंने लिख दिया ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में जो होगा टेम्परेट जोन हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में होगा वो भी टेम्परेट जोन हो जाएगा। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होगा। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सन की रेस कभी भी यहाँ पे ओवरहेड नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट भी लिख लो फ्रीज जोन के बारे में भी, राइट। एरियाज लाइन बिटवीन, एरियाज, आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं? चलो अभी मैं आपको कुछ इमेजेस शेयर करके वहां पे चीजें और अच्छे से समझाऊंगा। बिटवीन द ट्रॉपिकल सर्कल, यहाँ पे प्रोजेक्टर आता है क्या? इस पे प्रोजेक्टर मतलब अगर कुछ मैं पीपीटी तैयार करके ले आऊंगा तो इस पे दिखा सकता हूँ प्रॉपर? चलो बेस्ट है, तो नेक्स्ट क्लास से पीपीटी से ही पढ़ाऊंगा आपको। तो इससे क्या होगा, लिखना भी कम पड़ेगा मुझे और आपको ज्यादा चीजें मैं पढ़ा भी पाऊंगा।
तो मैं पीपीटी लेके आऊंगा तो वो चीज यहाँ पे होता है ना ऐसे होता पूरा प्रॉपर दिखेगा ना आपको। Yes. चलो ठीक है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो मैं नेक्स्ट क्लास से आपको पीपीटी से ही पढ़ाने वाला हूँ। तो उससे मेरा भी काम कम हो जाएगा और आपको ज्यादा चीजें कम समय में पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास से पीपीटी से पढ़ेंगे। अभी आज पढ़ लो। एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल आर वेरी कोल्ड, are very cold, hence called frigid zone, hence called frigid zone। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्रिजिड जोन कहा जाता है, hence called as frigid zone। और यहां याद रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे, सन्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, सन्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, हमेशा कैसी होती हैं, स्लैंटिंग होती हैं। स्लैंटिंग मतलब क्या, तिरछी होंगी, कभी भी ओवरहेड नहीं पड़ेंगे। समझ में आ गया तीनों जोन के बारे में सबको? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। ऑफिस जाना है, प्लीज जाइए। हाँ हाँ, नोट्स कलेक्ट कर लो, और सिग्नेचर साइन कहीं नहीं करना होता आप लोग को, कुछ भी कर दिया साइन, अटेंडेंस सीट है नहीं, अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके। समझ में आया आपको कुछ, पक्का? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करो। क्लियर हो गया सबको? ये नोट कर लो, फिर लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूं आपको। चलो अब लिखो, लॉन्गिट्यूड लिख लिया है या लिख रहे हो? लिखो लिखो जल्दी से लिखो। बंद कर दो, बिल्कुल कर दो फैन, कर देगा फैन वो, अब बैठो, कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इधर का भी बंद कर दो, ये वाला लाइट ऑन कर दो। कोई बात नहीं, हाँ हो गया, अब लाइट ऑन कर दो। ठीक है ओके। कहां से आते हैं आप लोग? प्लेस, व्हाट इज द डिस्टेंस? कल्याण, ओके ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, लॉन्गिट्यूड। चलो थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड भी लिख लेंगे। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। चलो नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको पीवाईक्यूज वगैरह भी सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि पहली क्लास है तो आज ही नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ यहां से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। राइट, अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड लिखो, longitude is an angular distance, longitude is an angular मतलब with angle it is measured, angular distance measured in degrees, measured in degrees, measured in degrees along the equator, along the equator, along the equator, east or west of the prime, east or west, east or west of the prime meridian, of the prime meridian। और प्राइम मेरिडियन क्या है बताओ? 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हाँ वेरी गुड, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री longitude, longitude। Next, on a globe, on the globe,
on the globe. Longitude is shown as a series of semicircles, semicircles, series of semicircles that run from pole to pole, that run from place to place. Yep, that run from pole to pole, not place to place, no. That run from pole to pole. और कौन से पोल टू पोल की बात हो रही है? नॉर्थ टू साउथ, पोल, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट नोट कर लेंगे, राइट। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपीएससी ने बनाया हुआ क्वेश्चन है। इट वॉज फाइनली decided in 1884, it was finally decided in 1884 by international agreement, international agreement that zero meridian is the longitude, that passes through, कहां से पास होता है? ग्रीनविच का नाम सुना है? passes through the Royal Astronomical Observatory, कहां पे लोकेटेड है ये ऑब्जर्वेटरी? द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज द नेम ऑफ अ ऑब्जर्वेटरी इन at Greenwich near London, near London. तो याद रखेंगे ये चीज कहां पे लोकेटेड है? रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन इन ग्रीनविच, CH, विच, WICH, ठीक है, ग्रीनविच नियर लंदन। दिस इज द प्राइम मेरिडियन, दिस इज द, जो ये पास होता है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन, दिस इज द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, दिस इज द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, from which all other meridians radiate, all other meridians radiate, किधर निकलेंगे? नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट? रेडिएट 0 डिग्री, रेडिएट ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड, यहां से ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड जाएंगे ना, ईस्टवर्ड और ये वाला लाइन इधर वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड्स अप टू 180 डिग्री, अप टू 180 डिग्री। और यहां पे एक पॉइंट नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। longitudes have one very important function, longitudes have one very important function, क्या है वो important function? They help in determining the date. Important function, they determine local time, मैंने समझा सब दिया, सिर्फ आपको लिखवा दे रहा हूं। लोकल टाइम in relation to GMT, GMT मतलब क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। याद रखेंगे, यहां से आओ तो शॉर्ट में लिख सकते हो GMT कहाँ है, ये ना, इसको GMT विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीनविच मीन टाइम, जो ये ग्रीनविच से पास होता है, ऑल्सो नोन एज GMT, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा है। तो रिलेशन टू GMT विच इज ग्रीनविच मीन टाइम, which is sometimes known as what time, which is sometimes known as word time। GMT का फुल फॉर्म क्या बताया, बताओ? ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का फुल फॉर्म लिख लेना, ग्रीनविच मीन टाइम, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड भी हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम समझ लेते हैं 5 मिनट।
लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड्स हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करते हैं, हेल्प हमें करते हैं डिटरमाइनिंग द लोकल टाइम, दे हेल्प अस डिटरमाइन द लोकल टाइम इन रिलेशन टू जीएमटी व्हिच इज समटाइम नोन एज वर्ल्ड टाइम। तो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ लिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी समझेंगे। तो लैटिट्यूड में आता है क्लाइमेट। हाँ, लैटिट्यूड में क्लाइमेट आएगा, क्लाइमेट और कोई सीजन कहां कैसा चल रहा होगा, सन की रेस कितनी है, तो उस हिसाब से डिटरमाइन होता है। सबसे ज्यादा रेनफॉल तो सबसे एक प्लेस याद रखो क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस किसकी वजह से डिटरमाइन होता है, लैटिट्यूड। जैसे आप नॉर्थ पोल 90 डिग्री लॉटिट्यूड के पास जाने लगोगे, क्लाइमेट वहां चेंज हो जाएगा। इक्वेटर के पास रहोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास रहोगे, बहुत ज्यादा हीट है, मतलब रेनफॉल ज्यादा होगी यहाँ पे, उस हिसाब से हम समझ सकते हैं वो चीज को। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इधर रफ कर दूं ये। अब लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड इंटरनेशनल डेटलाइन, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ऐसे लिखो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, पहले इसको समझो आप आराम से पहले। आपको पता होगा अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस पता है सबको, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। दो वर्ड होते हैं ना, रोटेशन और रिवोल्यूशन, क्या डिफरेंस होता है। एक्सिस पे होता है, किसी के अराउंड होता है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। रोटेशन इज अराउंड वंस एक्सिस, जैसे मैं अगर ये घूम गया तो ये मैंने क्या किया, रोटेट किया ये। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग घूम गया तो मैंने क्या किया बताओ, रिवॉल्व किया। मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रहे हैं, वो क्या है, रिवोल्यूशन है। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे भी तो घूम रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, वो क्या है, रोटेशन है। when a body or when a planet rotates around its own axis it is called as, या revolves around its own axis it will be called as rotation। या जब किसी प्लैनेट के अराउंड, जैसे ये अर्थ है घूम गई अपने एक्सिस पे, ये क्या है, रोटेशन। ये सन है, इसके चारों तरफ घूम के आई तो क्या हुआ, ये रिवोल्यूशन। ठीक, तो अर्थ जो है आपको पता होगा 24 आवर में रोटेट होती है, इसी वजह से दिन और रात होता है ना। ठीक, याद रखेंगे रोटेशन की वजह से ही दिन और रात हो रहे हैं। तो अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है, 360 डिग्री रोटेट करती है कितने आवर्स में बताओ, 24 आवर्स में। अर्थ रोटेट्स, एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है ना अर्थ अपने एक्सिस पे, कितने घंटे में, 24 आवर्स में। तो इसीलिए याद रखेंगे, एक आवर में वो कितना डिग्री चला बताओ, 1 आवर में कितने डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री होगा क्या। डिवाइड करके देखो, अगर 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री है तो 1 आवर में अर्थ कितना रोटेट होगा, 15 डिग्री। डिवाइड करोगे ना, 24 1 जा 24 और 25 जा 120 हो जाएगा। तो मतलब एक घंटे में कितना चला, 15 डिग्री। और अगर आप ध्यान से समझो, क्या एक डिग्री में, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट्स में 15 डिग्री अगर कोई चला, एक डिग्री चलने के लिए उसको कितना टाइम देना पड़ेगा बताओ जल्दी से। अगर 15 डिग्री रोटेट करने के लिए अर्थ को टाइम लग रहा है 60 मिनट, एक घंटे का, तो एक डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट्स। अगर ध्यान से समझो 15 डिग्री के लिए 60 मिनट, तो एक डिग्री के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 16 डिवाइड बाय 15 कितना हो जाएगा, 4 मिनट। तो याद रखेंगे अर्थ जो है एक डिग्री की रोटेट करती है कितने मिनट में, 4 मिनट में। समझ में आया। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। अगर ये इंटरनेशनल, ये अगर प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के जैसे जैसे हम 15 डिग्री ईस्ट में जाएंगे, टाइम एक घंटे हमें प्लस करना पड़ेगा इस वाली लाइन से। इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। और यहीं पे कहीं लोकेटेड है आपके पास जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। मान लो लंदन में अगर बज रहा है 12 की रात हो रहा है, तो मतलब 12 AM हो गया होगा। मान लो रात के 12 बज रहे हैं लंदन में, इंडिया में क्या कितना टाइम हो रहा होगा उस समय, इंडिया कितना टाइम अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा है कहां पर, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लंदन में। तो वहां से इंडिया कितना आगे है, हमें उसके लिए जानना पड़ेगा इंडिया का लैटिट्यूड कितना है। इंडिया का लैटिट्यूड है, इंडिया का अगर लॉन्गिट्यूड देखें, लैटिट्यूड नहीं, इंडिया, क्योंकि टाइम डिटरमाइन करने में कौन हेल्प करेगा, लॉन्गिट्यूड। तो व्हाट इज इंडियाज लॉन्गिट्यूड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लिया जाता है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस पे लिया जाता है, किस लॉन्गिट्यूड पे, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और अगर 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे ध्यान से समझना, अगर 0 डिग्री पे टाइम हो रहा है 12 AM, मतलब रात के 12 बज रहे हैं, और मैं क्या कह रहा हूं कि हर 15 डिग्री अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हमें 1 आवर प्लस करना पड़ेगा। किसमें, जो भी टाइम यहां हो रहा होगा, हमने 15 डिग्री ईस्ट में आ गए, ये ईस्ट है ना, 15 डिग्री हम ईस्ट में जाएंगे तो हमें 1 घंटे प्लस करना पड़ेगा। और अगर हम इस वाले लाइन से 15 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो 1 घंटे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इंडिया कितने ईस्ट में लोकेटेड है, 82.5 डिग्री, मतलब इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कौन सा पकड़ा जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब मुझे बताओ इसमें कितने, देखो अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 15 5 जा 75 हो जाएगा, 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, मतलब 5 आवर्स तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, प्लस 7.5 और है, 7.5 और बच रहा ना 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, हाफ आवर, 30 मिनट्स। अगर 15 डिग्री चलने के लिए, अब देखो यहाँ पे 15 डिग्री चलने पे 1 घंटा आगे होगा, तो 7.5 चलने पे कितना घंटे आगे हो जाएगा, 30 मिनट्स। तो इसीलिए इंडिया देखोगे 5 आवर्स 30 मिनट अहेड होता है ग्रीनविच मीन टाइम से। रीजन आज समझ में आया आपको क्यों होता है, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड ये 0 डिग्री है, इससे जितने 15 डिग्री ईस्ट में जाते जाएंगे, 15 डिग्री, अगर मान लो हम 30 डिग्री ईस्ट में आ गए, अगर यहाँ 12 बज रहा होगा तो यहाँ कितना बजेगा, 2 बजेगा। समझ में आ रही बात की नहीं, रात के 2 मतलब 2 AM हो रहा होगा। और अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री ईस्ट में आ गया तो कितना हो रहा होगा, 3 AM। 60 डिग्री ईस्ट में आ गया तो कितना हो रहा होगा, 4 PM। 75 आ गया तो कितना हो रहा होगा, 5 PM। और जैसे ही 82.5 आएगा तो इंडिया में कितना बज रहा होगा उस समय, 5:30 AM। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया। longitude is very important because it is used to determine the local time. जीरो मेरिडियन विच इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन पे जो भी टाइम हो रहा होगा, अगर हम इस प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में आएंगे टाइम बढ़ता जाएगा, अहेड होता जाएगा, इसके वेस्ट में जाएंगे टाइम घटता जाएगा। अगर 15 डिग्री ईस्ट में आया 1 घंटे जोड़ लो, अगर 7.5 डिग्री ईस्ट में आया तो आधे घंटे जोड़ लो, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस पता बताएंगे। इंडिया कहां लोकेटेड है, इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या लिया गया है, 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड नॉट लैटिट्यूड। तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, अगर इसको हमने 15 से डिवाइड किया तो देखा हमने ये कितनी बार जा रहा है, 5.5, या हम इसको कह सकते हैं 5.5 को 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, क्योंकि आवर्स का आधा कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स। तो इसीलिए इंडिया इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, कितना अहेड है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इफ इट इज, ध्यान से सुनो, इफ इट इज 2 PM, if it is 2 PM at GMT, if it is 2 PM at GMT on 90, आज कौन सी डेट है, 18th ऑफ नवंबर, 18th ऑफ नवंबर को GMT पे टाइम हो रहा है 2 PM। इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा बताओ आज, 5 घंटे, 7.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे करो, 7:30 PM हो रहा होगा। 5 घंटे आगे कर दो, 3 4 5 6 7 एंड हाफ, तो 7:30 AM। ठीक, अगर इसी तरीके से मैं कहूं, मुझे बताओ आप लोग 75 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा, अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे 2 बज रहा होगा, चलो बताओ। अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे 0 डिग्री में प्राइम मेरिडियन पे, GMT जिसको बोलेंगे ग्रीनविच मीन टाइम पे टाइम हो रहा है 2 बजे हैं दोपहर के, 2 PM। मुझे 75 डिग्री वेस्ट पे बताओ कितना टाइम होगा, अगर कोई देश जो है वो 75 डिग्री वेस्ट पे लोकेटेड होगा तो वहां पे टाइम कितना हो रहा होगा। हाँ आओ, हाँ AM आ जाएगा ना, PM नहीं होगा, पीछे आओ, पीछे आएंगे, मतलब अगर यहाँ पे हो रहा है कितना 2 PM हो रहा है, तो अगर 15 डिग्री इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 PM, 12 12 PM हो जाएगा ना वहां पे, फिर 11 AM, 10 AM, 9 AM हो रहा होगा। 5 घंटे आप पीछे आ गए ना, 9 AM उसी दिन का AM होने लग गया। और अगर आप आगे आगे थे हो तो 5 घंटे प्लस PM ही चलता रहेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा, इसीलिए यूज होता है, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। ठीक, चलो लिखो, राइट, लॉन्गिट्यूड और टाइम में लिख लो, मैं डिक्टेट करने से लिखते हैं, आप लोग लिख लेंगे, बोलो लिखो। सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ, अब रिवोल्यूशन बोल रहा हूं तो रोटेशन से कंफ्यूज मत करना, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री
वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री रिवॉल्यूशन रिवोल्यूशन, हाँ REVOLUTI, हाँ रिवोल्यूशन, और इसको रोटेशन से भी कंफ्यूज मत करो, बात वही हो जाएगी इस कॉन्टेक्स्ट में, बस समझो घूम जाता है। रिवोल्यूशन इन रिवोल्यूशन इन रिवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन वन डे, रिवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन वन डे और 24 आवर्स, वन डे और 24 आवर्स, वन डे और 24 आवर्स, कॉमा, इट पासेस थ्रू इट पासेस थ्रू इट पासेस थ्रू 15 डिग्री इन वन आवर, यहां पे लिख देता हूं, इट पासेस थ्रू 15 डिग्री इन वन आवर, इट पासेस थ्रू 15 डिग्री इन वन आवर। आई थिंक ये आपको समझ में भी आ रहा होगा जो मैंने समझाया है, 15 डिग्री इन वन आवर, और वी कैन से 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, और वी कैन से 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, नोट डाउन कर लो, 15 डिग्री इन वन आवर और 1 डिग्री इन वन। नेक्स्ट लिखेंगे, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लिख भी रहा हूं, देख लेना, नहीं समझ आएगा। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो एवरी 15 मिनट, सो एवरी 15 डिग्री, नॉट 15 मिनट, सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड, सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड, कहां से बताओ, ईस्टवर्ड, लोकल टाइम ईस्टवर्ड कहां से, फ्रॉम जीएमटी, जीएमटी बोलूंगा समझ जाएंगे ना, या प्राइम मेरिडियन लिख देता हूं, फ्रॉम जीएमटी और प्राइम मेरिडियन पे ही जीएमटी है, जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लंदन में लोकेटेड है, फ्रॉम जीएमटी और अंडर ये प्राइम मेरिडियन वी गो ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाई 1 आवर, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाई लोकल टाइम इज एडवांस्ड मतलब आगे बढ़ा दिया जाएगा, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाई 1 आवर, local time is advanced by 1 hour, and if we go westward, and if we go westward, and if we go westward, local time is retarded by 1 hour, local time is retarded by 1 hour, retarded by 1 hour, रिटार्डेड मतलब पीछे कर दिया जाएगा, और एडवांस मतलब आगे करना पड़ेगा 1 आवर, अगर हम वेस्टवर्ड जाएंगे। समझ में आ गया ये, क्लियर, कोई दिक्कत है यहां पे तो बताओ मुझे, समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट, क्लियर है, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी आपको कोई डाउट है तो बताओ मुझे, अभी रिलेटेड टू ज्योग्राफी या जो भी मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, नेक्स्ट क्लास में मैं पीपीटी लेके आऊंगा, मस्त आपको समझाने वाला हूं चीजों को, इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन दो, बताएंगे आप लोग, चलो बताओ मुझे, इसी से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इफ द टाइम if the time at 30 degree west longitude, if the time at a place located at if the time at a place located at 30 degree west longitude is 10 a.m. then what will be time at a place located at 75 degree east longitude, बताओ। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा गया, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द टाइम एट अ प्लेस लोकेटेड 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 10 AM, 30 डिग्री वेस्ट पे कितना है, 10 बज रहा है, then what will be the time at the place located at 15 degree 75 degree east longitude, आगे जाना है, देखो ध्यान से समझो, ये अर्थ है, ये प्राइम मेरिडियन हो गया, मैंने कहा प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री पहले वेस्ट में है, वेस्ट में मतलब अगर यहाँ 10 बज रहा है तो ये 2 घंटे पीछे होगा ना, ये 2 घंटे पीछे होगा, 30 डिग्री है तो 15 डिग्री वेस्ट जाने पे 1 घंटा पीछे होता है, 30 डिग्री जाने पे 2 घंटे पीछे हो जाएगा। अगर यहाँ 10 बज रहा है तो यहाँ कितना बजा होगा, 12 PM हो रहा होगा, आप समझ में आ रही मुझे कि नहीं, आप ये तो अगर यहाँ 12 PM होगा तभी तो यहाँ पे 10 बजेगा,
कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई यहाँ पे अगर 12 पीएम हो रहा होगा तो 15 डिग्री वेस्ट में कितना हो रहा होगा? 11 एम। 30 डिग्री पे कितना हो रहा है? 10 एम। अब यहां से हमें आगे जाना है, ईस्ट में जाना है ना, ईस्ट मतलब इधर जाना है। तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा एडवांस करना पड़ेगा। 75 डिग्री पे कितना एडवांस करना पड़ेगा? 5 आवर्स। तो मतलब 12 में 5 जोड़ेंगे 5 पीएम हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे आप? पहले हमें इस वाले प्लेस से पहले हमें प्राइम मेरिडियन पे पहुंचना है, अगर वेस्ट का कोई भी प्लेस दिया है। फिर प्राइम मेरिडियन से हम निकलेंगे ईस्ट के लिए, जहां पे पूछ रहा होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई आपको? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। क्लियर? अंडरस्टूड? अब बताओ क्या डाउट है, समझ में आया सबको? इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग वो बता दूंगा, मतलब मराठी मीडियम में कौन सा, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। महाराष्ट्र के लिए भी बताता हूँ। समझ में आया? मैपिंग वर्क करेंगे, जो भी होमवर्क दिया है 2 होमवर्क उसको करके आएंगे। इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज बताओ, चलो टेल मी द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, 4 हो गए। चाइना, चाइना 5। श्रीलंका, श्रीलंका मैरी टाइम बाउंड्री करता है, चलो 6। म्यांमार, और बांग्लादेश नहीं है, बोला बांग्लादेश। देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी है, वखान कॉरिडोर हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से उसका बॉर्डर लगता है, याद रखेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, दीज आर द 7 विच शेयर लैंड बाउंड्री। मैरी टाइम बाउंड्री 2 स्टेट शेयर कर, 2 कंट्रीज शेयर करती, कौन कौन सी? म्यांमार और श्रीलंका। आपको एक होमवर्क लास्ट लिख लो, आपको लिखना रहेगा कौन सी कंट्री किन किन स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है। जैसे बांग्लादेश शेयर करता है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से, उसी तरीके से पाकिस्तान किन किन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड मैप वर्क आपका क्या हो गया? थर्ड मैप वर्क हो गया कि बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया लिखना है along with states, along with states in India, along with states in India। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सबसे बड़ी बाउंड्री किस कंट्री के साथ लगती है बताओ? बांग्लादेश। द लेंथीएस्ट बाउंड्री इज विथ बांग्लादेश। कितनी लेंथ है? 4096 किलोमीटर से भी ज्यादा है, 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ हम 5 बॉर्डर कर 5 वो करते हैं, 5 स्टेट के साथ। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको म्यांमार के साथ करना है, ऐसे ही आपको पाकिस्तान के साथ करना है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा किसी स्टेट के साथ, फिर किसी स्टेट के साथ, फिर किसी स्टेट के साथ, फिर किसी स्टेट के साथ। डन? अंडरस्टूड? शैल वी वाइंड अप एट दिस नोट? कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो बताओ। चलो इसी नोट पे हम लोग अपना आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पढ़ के आना, ठीक है? एनसीईआरटी क्लास 6 के कोई 2-3 चैप्टर पढ़ के आओ आप नेक्स्ट क्लास में। डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? अटेंडेंस शीट मुझे दोगे आप? मुझे ले जाना होगा? साइन करके दो, साइन करके दो।